آج کی اختتام مجلس پر شبیہ علم کی زیارت پر عمل ہوگی۔ 9 صفر کو اختتام مجلس پر شبیہ تابوت یتیمان مسلم بن عقیل علیہ السلام اور 10 صفر کو اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح پر عمل ہوگی۔ آپ احباب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی صدا ہے۔ باواد بلند صلوات و احترام سے ملتمس ہوں جناب علامہ حسن رضا باقر صاحب سے کہ وہ دونوں کے فروز ممبر ہوں اور خطاب فرمائیں۔ باواد بلند صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بواز بلند صلوات علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات۔ دعائے خالق کی کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، اور جو دعائیں آجات لے کے آئے مالک کی ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے۔ جو مومنین منور بیمار ہیں ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے۔ ایک بچہ جو کینسر میں برین ٹیومر میں مبتلا ہے، اسی طرح ایک بچے کی آج سرجری تھی، اللہ کل بیماری کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرمائے۔ ہم سب کو سوائے غم حسین کی کل غم نصیب نہ فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کیے گا مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم ووارث خون حسین امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ قبلت جو ہے کہ کچھ عرض کروں۔ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، آج 8 صفر مظفر کی مجلس عزا کی جس میں وارثان قرآن کے تحت گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے کچھ وارث بنائے ہیں اور یہ وارث وہی ہیں کہ جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے چنے ہوئے کون ہیں، اور کل یہ میں نے عرض کیا تھا جو نبی نے کہا تھا میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ قرآن نبی کا خاموش ترکہ تھا، اہل بیت بولتا ہوا ترکہ ہے، یعنی قرآن ورثہ تھا، اہل بیت وارث تھے۔ جو نئے چہرے ہیں تاکہ وہ بھی شریک سفر ہو جائے، اور کل ہم نے یہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ اللہ نے جنہیں وارث قرآن بنایا ہے، آپ ان کے علاوہ کوئی بندہ دکھائیے جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل تفقدون، یا کہ صرف ان ہستیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو، تو اس لیے ہم بھی صرف ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ جب کسی اور نے کہا ہی نہیں ہم سے پوچھو تو ہم کسی اور کے دروازے پہ کیسے جائیں؟
اور آج بات میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، چونکہ مجھے کہا گیا کہ آج کا دن مولا عباس سے بھی مخصوص ہے، کہ جو علی یہ کہہ رہے تھے جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے تم علی کو کھو دو، اور کہا علی آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے۔ جو علی یہ دعویٰ کر رہا تھا اور صاحب منبر سلونی تھا، وہ علی اپنے اس بیٹے عباس کے بارے میں کہہ رہا تھا لسان ابی ہی فی فی ہی، کہ عباس کے منہ میں اس کے باپ علی زباں ہے۔ اس لیے کہ جو وارث قرآن ہوگا اس کا سینہ علم کا سمندر ہوگا، تو وہ علی کہہ رہے تھے کہ عباس کے منہ میں مجھ علی کی زبان ہے۔ قبلہ مولا عباس کی صرف ہم شجاعت تک محدود رہتے ہیں یا وفا تک، لیکن جو علی خود صاحب نہج البلاغہ ہے وہ کہہ رہا تھا عباس کے منہ میں بھی علی کی زبان ہے۔ کوئی عام باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہمیں بالکل خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ بات کر رہا تھا کہ جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور اگر مولا عباس کی فصاحت و بلاغت سے پہلے آپ کے ذہنوں کو مولا عباس کی معرفت سے ذرا منسلک کر دو، کون ہے مولا عباس؟ دیکھیے، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ دین پناہ است حسین، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے جملہ سمجھ آئے وہ بول کے تائید کرے گا۔ پھر کہہ دیتا ہوں تاکہ جو ابھی تک سوچ میں ہے کہ میں نے جملہ کیا کہہ دیا ہے، کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ چلے، اور جو ابھی تک شریک سفر نہیں ہوا اس کے لیے معرفت مولا عباس کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جس کا جھولا فرشتے جھولائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے سامنے مولا حسین کے عزادار ہے، جس کا جھولا فرشتے آ کے جھولائیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھولائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یا مردہ باد، مردہ باد، حسین سب مل کے جواب دیجیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی دعائیں مستجاب کرے۔ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے باب الحوائج کے صدقے میں مالک آپ کی دعائیں مستجاب کرے گا، کہ جس کا جھولا فرشتے جھولائیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھولائے اسے عباس کہتے ہیں۔ چلیے، آپ کی محبت مولا عباس دے کے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، جس کے کپڑے رضوان جنت سے یہ اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جنت سے کپڑے آئے تھے، جس کے کپڑے رضوان جنت سے یہ اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے خود خاتون جنت سے یہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اب یہ جو مولا نے تعارف کروایا کہ عباس میرا وہ بیٹا ہے جس کے منہ میں علی کی زبان ہے، اگر مولا علی کی فصاحت و بلاغت مولا علی کے اس بیٹے میں دیکھنی ہو تو مولا علی کی فصاحت و بلاغت کے خطبے پڑھیے۔ تاریخ میں کچھ مولا علی کے خطبات محفوظ ہیں۔ جب یہ 28 رجب سے قافلہ چلا تو مدینے کے باہر ایک شجرۃ الوداع ہے جسے بئر الوداع بھی کہتے ہیں، وہاں پہ مولا عباس نے خطبہ دیا تھا۔ 8 ذی الحج کو جب مولا حسین نے احرام توڑے تو مولا عباس نے پھر خطبہ دیا تھا۔ 2 محرم کو جب یہ کربلا پہنچے اور حر نے کہا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیجئے، مولا عباس نے پھر وہاں خطبہ دیا تھا۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، مولا عباس نے پھر لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا۔ شب عاشور شمر مولا عباس اور ان کے مادری بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا تھا، مولا عباس نے پھر شمر کے سامنے خطبہ دیا تھا۔ روز عاشور مولا عباس
جب لشکر یزید کے سامنے جا رہے تھے آخری وقت پھر ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یعنی اب اگر آپ نے علی کی فصاحت و بلاغت مولا علی کے لہجے میں دیکھنی ہو تو آپ مولا عباس کا لہجہ دیکھیے. صرف ان میں سے چند جملے آج پڑھ رہا ہوں تاکہ جو وارث قرآن کہہ رہا تھا کہ عباس کے لہجے میں بھی علی نظر آتا ہے، تمہیں صرف عباس کی تلوار میں نہیں عباس کے لہجے میں بھی علی نظر آتا ہے. جب مولا حسین نے احرام توڑ کے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، مولا عباس نے آ کے راستہ روکا، کہ فرزند زہرا کہاں جا رہے ہو؟ کہ عباس کچھ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آئے ہیں. کہا مولا پھر؟ کہا حسین چاہتا ہے میں نے کعبے کی حرمت بچانی ہے. کہ مولا تو حج نہیں کریں گے؟ کہ نہیں، حرمت بچانے کے لیے حسین اللہ کا گھر چھوڑ رہا ہے. مولا عباس نے پہلا جملہ کہا، مولا مجھے اجازت دیجئے، کس میں ہمت ہے وہ حسین کو حج سے روکے؟ کہ اگر 40 آئے ہیں آپ کے قتل کی نیت سے تو اگر اجازت دیجئے حسین حج کرنا چاہتا ہے. کسی میں جرت نہیں کہ وہ فرزند زہرا کو حج سے روکے. مولا نے کہا نہیں عباس، یہاں جنگ نہیں کرنی، اس لیے یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی حرمت بچانی ہے. اب مولا عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت تو دیجئے، میں علی کا بیٹا ہوں، صرف تلوار سے قتل کرنا نہیں جانتا، زبان سے قتل کرنا بھی جانتا ہوں. صرف تلوار سے قتل کرنا نہیں جانتا، میں زبان سے بھی قتل کرنا جانتا ہوں. اب وہاں جو علی کے علی بیٹے نے سیف لسانی سے قتل عام کیا تھا، جو سیف لسانی سے قتل عام کر رہے تھے، پہلے حوالہ دے دوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو جائے. مولا علی کی فصاحت و بلاغت عباس کے لہجے میں سن کے. ایک کتاب کا حوالہ ہے مناقب السادۃ الکرام. اسی طرح ایک اور کتاب چھپی ہے ایران سے خطیب کعبہ کے نام سے، علی اصغر یونسیان اس کے رائٹر ہیں. وہ پوری کتاب ہی خطیب کعبہ مولا عباس کے ان جملوں کی تشریح کے بارے میں ہے. کہتے جیسے ہی کہا نا میں سیف لسانی سے قتل عام کرنا جاتا ہوں، کہ اچھا عباس جا، تو جو کہنا چاہتا ہے جا کے کہہ. اب جملے ہے فتار ابو الفضل العباس، مولا عباس فوراً کعبے کی چھت پہ گئے. اب لوگوں کو کچھ کہنے کے لیے مولا عباس فوراً کعبے کی چھت پہ گئے اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت لامام البرر من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ لو لم تکن مشیۃ مولایا مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران وقعت علیکم حیات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیتہ الغوانی السکران ممن فی بیتہ الوحی والقرآن ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات ممن فی بیتہ التطہیر والآیات. قبلہ صرف اتنا میں ترجمہ کروں گا کہ جتنا میرے سامعین کا ظرف برداشت کرے گا. مولا عباس کہاں کھڑے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. قبلہ یہ تاریخ اسلام میں پہلا خطیب ہے جس کا منبر کعبہ بن رہا تھا. تاریخ اسلام میں یہ پہلا خطیب ہے جس کا منبر کعبہ بن رہا تھا. یا تب یہ ہوگا جب میرا 12واں امام آئے گا. جب میرا 12واں امام آئے گا تب اس کا منبر کعبہ بن رہا ہوگا. مولا نے جو پہلا خطبہ دیا وہ اس گھرانے کی عظمت سمجھنے کے لیے کافی تھا. مولا عباس نے ایک انگلی سے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، دوسری انگلی سے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا
حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ کوئی ذاکر واعظ خطیب نہیں بول رہا تھا، حجت خدا کا بیٹا بول رہا تھا، عباس بول رہے تھے، حجت خدا کے سامنے بول رہے تھے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا۔ حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے یہ کیا مولا عباس سمجھا رہے تھے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کعبہ علی کو شرف دے رہا تھا، جس سے جملہ سمجھ آیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کعبہ علی کو شرف دے رہا تھا کہ علی 13 رجب میں کعبہ میں آئے تو کعبہ نے علی کو شرف دے دیا، کہ نہیں، کعبہ علی کو شرف نہیں دے رہا، علی کعبہ کو شرف دے رہا تھا۔ مولا آپ کو سلام۔ سب مل کے بچے کے نعرے کا جواب دیجیے۔ حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، محفل کو وجہرون کے محفل بنا دیا، پیدا ہوئے علی تو مولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ اچھا، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ حالانکہ قرآن پڑھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکر مبارکا وہدی للعالمین۔ کائنات میں یہ پہلا گھر اللہ نے کہا یہی سرزمین بکا پہ تھا۔ گھر پہلا تھا لیکن قبلہ نہیں تھا۔ گھر تھا، قبلہ نہیں تھا۔ گھر تھا، ابھی اس طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کر رہے تھے تو قبلہ کا بن رہا تھا۔ میں اور جملہ آسان کرتا ہوں اپنے پریشان ذہنوں کو سکون دینے کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو کب فرشتے جھک رہے تھے؟ اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو فرشتوں، میں آدم کی مٹی گوندھ لوں تب سجدہ نہیں کرنا، آدم کا پیکر بنا لوں تب سجدہ نہیں کرنا، آدم کا جسم بنا لوں تب سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا، کب آدم سجدے کے قابل ہوگا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اسے بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب انتظار نہیں کرنا سجدے میں گر جانا، جیسے ہی روح پھونک دوں اب انتظار نہیں کرنا سجدے میں گر جانا۔ تو پتا چلا جب مٹی گوندھی گئی سجدہ نہیں تھا، پیکر آدم تھا سجدہ نہیں تھا، جس میں آدم تھا سجدہ نہیں تھا۔ جب روح آدم میں آ رہی تھی تب آدم سجدے کے قابل ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا پہلا گھر قبلہ کون تھا؟ پہلا گھر کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ سرزمین بکا پر پہلا گھر بن رہا تھا، قبلہ نہیں تھا۔ کئی انبیاء گزر گئے، گھر تھا، قبلہ نہیں تھا۔ اچھا، قبلہ کب بنا؟ جب 13 رجب کو روح کعبہ میں آ رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ جب روح کعبہ میں آ رہی تھی تب یہ قبلہ ہو گیا تھا، اور وہی مولا نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یعنی سمجھ لو کعبہ علی کو شرف نہیں دے رہا، علی کعبہ کو شرف دے رہا تھا۔ یعنی گویا کہہ دوں علی کعبہ میں آئے تو قبلہ ہو گیا، علی کعبہ میں آئے تو قبلہ ہو گیا۔ علی اتنا بلند ہے، اگر علی کہیں اور آتے اسے قبلہ بنا دیتے۔ علی اتنا بلند ہے، یہ میرا مولا عباس سمجھا رہے تھے، اگر کہیں اور آتے تو اسے قبلہ بنا دیتے۔ اس لیے شاعر نے 2 مصروں میں مولا عباس کے
जुमले से ही मौला अली का मकाम समझाया कि अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना ज़माना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना ज़माना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। कहा हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को शर्फ बख्शा हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। का अल्लज़ी काना बिल अम्सी बैतन अस्बहा क़िबलतन, का एक रात पहले ये घर था, अली के आए सुबह ये किबला हो गया। एक रात पहले ये घर था। अब अगर कोई अरबी का लुत्फ़ है, अल्लज़ी काना, काना था, बिल अम्सी एक रात पहले, बैतन घर, अस्बहा सुबह हुई, किबलतन तो ये किबला हो गया। एक रात पहले घर था, सुबह हुई, ये किबला हो गया। अच्छा जहाँ अली एक रात गुजार ले वो किबला हो जाता है, तो जहाँ अली सारी जिंदगी गुजार दे, जहाँ एक रात अली गुजारे वो किबला हो जाता है, तो जहाँ अली सारी जिंदगी गुजार दे उसका मकाम क्या होता है। चलिए बंद गली में नहीं छोड़ता, उसका भी मकाम समझा के जाता हूँ। जहाँ अली एक रात गुजारे वो किबला हो जाता है, जहाँ मेरा मौला सारी जिंदगी गुजारे उसका मकाम क्या है, ये मेरा नबी समझा रहा था। अली ने एक दिन गुजारा, एक शब गुजारे, वो किबला हो जाता है। मेरा नबी बगैर इजाजत के किबला में दाखिल हो जाते थे, अली के दर पे रुक के पहले इजाजत लिया करते थे। अली के घर पे या मौला अली के घर के दरवाजे पे रुक के पहले इजाजत लिया करते थे। अब मौला अब्बास ने कहा अय्युहल कफरतुल फजर, का ए काफिरू फाजिर लोगों। जैसे आप परेशान होगे, पहली दफा मैंने भी जब ये जुमला सुना तो सोचा सामने तो हाजी है। अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो फाजिर लोगों। मैं कहूंगा मौला ये तो हाजी हैं, मौला ये कलमा पढ़ते हैं, इसलिए तो हज करने आए हैं, और आप कह रहे हैं ऐ काफिरो फाजिर लोगों। अजब नहीं साहिब नहजुल बलागा का बेटा कहे कि मैं आज 8 ज़िलहज को काबा की छत पे खड़ा होके दुनिया को यही तो समझा रहा हूँ, अगर कोई मेरे हुसैन का दुश्मन हो काबा में भी आ जाए मुसलमान नहीं होता। मौला इन हाथों को सलामत, मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं और एक जुमला आसान कर देता हूँ। शरीकतुल हुसैन ने भी जो हुसैन के दुश्मन के दरबार में आयत पढ़ी थी ना, वो आयत थी वला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा। वो अली का बेटा कह रहा था काफिर फाजिर लोगों, और ये अली की बेटी आयत पढ़ रही थी कि हरगिज़ काफिर ये गुमान न करें। मैं शरीकतुल हुसैन से भी कहूंगा, ये तो खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है, और आप आयत वो पढ़ रही है जो काफिरों के बारे में है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू, हरगिज़ काफिर ये गुमान न करें कि हम जो इन्हें मोहलत दे रहे हैं इसमें उनके लिए कोई बेहतरी है, तो फिर मोहलत क्यों दे रहे हैं। का इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम इसलिए इन्हें मोहलत दे रहे हैं कि और बचे हुए भी गुनाह कर लें। यहाँ मौला अब्बास ने कहा काफिर व फाजिर लोगों, वहाँ शरीकतुल हुसैन ने कहा काफिर ये गुमान न करे। यानी दोनों समझा रहे थे कि हुसैन दीन है, जो हुसैन छोड़ दे उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं जो हुसैन छोड़ दे। ए काफिर व फाजिर लोगों,
अय्युहल कफरुतुल फजर अतसुद्दून तरीक़ल बैति लिइमामिल बररा। जानते हो किसका रास्ता रोक रहे हो? जानते हो किसका रास्ता रोक रहे हो? फिर मौला अब्बास खुद ही कहते हैं, हाँ तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है? हुसैन तो शरीफ लोगों का इमाम होता है। लिइमामिल बररा कम्मन हुआ अहक्कु बिही मिन साइरिल बरिया। कैसे करो, सारी कायनात में नजर दौड़ाओ और अब्बास को बताओ हुसैन से ज्यादा काबे का हकदार कौन है? ये वारिस काबा है। मन हुआ अहक्कु बिही मिन साइरिल बरिया व मन हुआ अदना बिही। अब मौला ने यहाँ एक जुमला कहा, जिसने ये जुमला समझ लिया उसे मारिफत इमामत भी हो जाएगी, मारिफत वारिसाने कुरान भी हो जाएगी, मारिफत सैयदुश शुहदा भी हो जाएगी। का लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व इसरारुहुल अलिया व इख्तिबारुहुल बरिया लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि। का अगर अल्लाह की जली हिकमतें न होती, अल्लाह के कुछ बुलंद राज न होते, का अगर अल्लाह ने बंदगान खुदा का इम्तिहान लेना न होता, अच्छा मौला तो क्या हो जाता? का अगर उसकी जली हिकमतें न होती, उसके बुलंद राज न होते, उसने बंदों का इम्तिहान लेना न होता, तो क्या होता? लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि। तो तुम देखते मेरा हुसैन काबे का तवाफ न करता, ये काबा मेरे हुसैन का तवाफ करता। मौला आपको सलाम। मालिक आपको सलाम दिया। ये जो हाथ उठ रहा है मौला की बारगाह में कशकोल है, बाबुल हवाइज इस हाथ को भर दे। कलौला हिकमुल्लाहिल जलिया, अल्लाह की जली हिकमतें न होती, बुलंद राज न होते, उसने बंदों का इम्तिहान लेना न होता, तो तुम देखते मेरा हुसैन काबे का तवाफ न करता, बल्कि काबा मेरे हुसैन का तवाफ करता। और फिर दूसरा जुमला कहा, क़द इस्तालमन नाउसुल हजरा वल हजरु यस्तालिमु यदैहि। का अगर जली हिकमतें न होती, उसके बुलंद राज न होते, उसने बंदों का इम्तिहान लेना न होता, तो तुम देखते क़द इस्तालमन नाउसुल हजरा वल हजरु यस्तालिमु यदैहि। सारी कायनात हजरे अस्वद को बोसे दे रही होती और हजरे अस्वद मेरे हुसैन के बोसे ले रहा होता। दुनिया हजरे अस्वद के बोसे लेती और हजरे अस्वद मेरे हुसैन के बोसे देता। अब कहा शायद लोग सोचें कि अगर हुसैन के इतने ही इख्तियार है तो फिर हुसैन काबा छोड़ के क्यों जा रहा है? अगर इतना ही मकाम है कि काबा इनका तवाफ करता, हजरे अस्वद इनके बोसे लेता, तो फिर हुसैन क्यों काबा छोड़ के जा रहा है? कि शायद ये समझे हुसैन मौत से डर गया है, कि हुसैन ने कहा हाजियों के रूप में मेरे कातिल आए हैं, इसलिए हुसैन काबा छोड़ के जा रहा है। शायद यजीदी समझे हुसैन मौत से डर गया है। कि सुनो अतुखव्विफून कौमी यलअबु बिल मौत फी तुफूलियती फकैफ काना फी रुजुलियती। का तुम उन्हें मौत से डराते हो जिनका बचपन में खेल ही मौत से खेलना होता है? का तुम उन्हें मौत से डराते हो कि जिनका बचपन में खेल ही मौत से खेलना होता है? का फकैफ काना फी रुजुलियती। यजीदियों खुद सोचो, जिनका बचपन ऐसा हो उनकी जवानी कैसी होगी? जो बचपन में मौत से खेलते हो उनकी जवानी कैसी होगी? अब मौला ने फरमाया सुनो, ये हुसैन नहीं जा रहा। लौ लम तकुन मशीयत मौलाया मजबूलतम मिन मशीयतिर रहमानी। ये हुसैन की मशीयत नहीं है कि वो काबा छोड़ के जा रहा है। हुसैन की मशीयत वही होती है जो रब्बे रहमान की मशीयत होती है। ये हुसैन का इरादा नहीं, रब्बे रहमान का इरादा है। ये हुसैन की मशीयत नहीं, ये खुदाए रहमान की मशीयत है कि हुसैन काबा छोड़ दे। का लौ लम तकुन मशीयत मौलाया मजबूलतम मिन मशीयतिर रहमानी। का अगर रब्बे रहमान की मशीयत के तहत मेरे हुसैन की ये मशीयत न होती कि हुसैन काबा छोड़ के जाना चाहता, तो क्या हो जाता?
था कला वक़ातु अलैकुम कसकरिल ग़ज़वानी अला असाफ़िरित तैलानी। यहाँ मौला अब्बास ने एक तशबीह इस्तेमाल की है, जिसने वो तशबीह समझ ली वो मौला अब्बास को समझ लेगा कि अगर हुसैन की मशीयत वही होती है जो रब्बे रहमान की मशीयत होती है, अगर रब्बे रहमान की ये मशीयत न होती कि हुसैन काबा छोड़ दे तो फिर क्या होता। तुम देखते अगर हुसैन हज करने का इरादा रखता होता और हुसैन काबा छोड़ के न जाना चाहता तो तुम देखते हुसैन का ये अब्बास तुम पे ऐसा हमला करता जैसे उड़ती हुई चिड़ियों पर बाज हमला करके उन्हें फिजा में दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। नहीं कोई मसला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजह। मालिक आपको सलामतियाँ दे। बाबुल हवाइज जो हाथ उठते हैं उसके स्टोल को खाली वापस ना लौटाए। कि अगर हुसैन की ये मशीयत न होती कि हुसैन काबा छोड़ के जाना चाहता, तुम देखते अब्बास तुम पे ऐसे हमला करता जैसे उड़ती हुई चिड़ियों पर बाज हमला करके उन्हें फिजा में दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। अब मौला ने कहा हाय हाथ फंजुरू सुम मंजुरू, तो अफसोस है तुम लोगों पर, तुम यजीद की वकालत में हुसैन के मुकाबले पे आ गए। और ये मैं आज के यजीद की वकालत करने वालों को भी कहूँगा, मौला अब्बास का ये जुमला तुम्हारे लिए भी है। हाय हाथ फंजुरू सुम मंजुरू, अफसोस है तुम लोगों पर, तुम यजीद के कहने पर हुसैन के मुकाबले पे आ गए। तुम मैसून नसरानी के बेटे के कहने पर जन्नत की सरदार के बेटे के दरवाजे पे आ गए। का फंजुरू सुम मंजुरू का सोचो, एक बार नहीं बार बार सोचो। किसे? मेरे हुसैन को भी, अपने यजीद को भी। जो आज का भी यजीद का वकालत करने वाला उसकी हिमायत करता है उससे भी हम यही कह रहे हैं, सोचो, एक बार नहीं बार बार सोचो। मेरे हुसैन को भी, अपने यजीद को भी। का सोचना क्या है? मौला अब्बास ने कहा हराम खा खा के इनके ज़मीन मर चुके हैं, इन्हें क्या पता है कि हुसैन के बारे में क्या सोचना है और यजीद के बारे में क्या सोचना है। कब वो भी तुम्हें अब्बास बता के जा रहा है। दोनों को सोचो, मिम्मन शारिबुल खमरी मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर, दोनों को सोचो और मुझे बताओ दोनों में से शराबी कौन है, हौज़े कौसर का मालिक कौन है। मौला आपको सलामत है, मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब करे, मौला आपको सलामत है। मिलके जवाब दीजिए। हैदरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। का यजीद के कहने पर तुम हुसैन के मुकाबले पे आ गए। का दोनों को सोचो, मेरे हुसैन को भी अपने यजीद को भी। का क्या सोचना है? मिम्मन शारिबुल खमरी मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर, दोनों को सोचो, दोनों में से शराबी कौन है, हौज़े कौसर का मालिक कौन है। दूसरा जुमला कहा का दोनों को सोचो, अपने यजीद को भी, मेरे हुसैन को भी, और अब्बास को बताओ दोनों में से मिम्मन फी बैतिहिल क़वानी सुकरानु मिम्मन फी बैतिहिल वहयु वल कुरानु। यजीद और हुसैन दोनों को सोच के अब्बास को बताओ दोनों में से किसके घर नाच गाना होता है, किसके घर वही उतरती रही, कुरान पढ़ता रहा। जो समझ गया उसे मैं दाद देता हूँ, जो मौला अब्बास की फज़ाहत व बलागत तक पहुँच गया उसे मैं सलाम पेश करता हूँ। कि दोनों को सोचो, किसके घर नाच गाना होता है, किसके घर वही उतरती रही, कुरान पढ़ता रहा। मौला ने तीसरा जुमला कहा कि दोनों को पहचानने के लिए कि अपने यजीद को भी पहचानो, सोचो, मेरे हुसैन को भी सोचो, और फिर बताओ मिम्मन फी बैतिहिल लहवातु वद्दनसातु,
वमिम्मन फी बैतिहि तत्हीरु वल आयात, अपने यजीद को भी सोचो, मेरे हुसैन को भी सोचो, और दोनों को सोच के अब्बास को बताओ किसका घर निजासतों का आमाजगाह है, किसके घर आयते तत्हीर उतरती रही। मौला अब्बास आपको सलामत रखे कि तुम यजीद के कहने पे हुसैन के मुकाबले पे आ गए, बताओ किसका घर निजासतों का आमाजगाह है, किसके घर आयत तत्हीर उतरती रही। फिर मौला अब्बास ने काबे की छत पे खड़ा होकर एक जुमले में कुफ्र, इस्लाम और निफाक की तारीख लिख दी कि क़द वक़अतुम फ़िल ग़लततिल्लती क़द वक़अत फ़ीहल कुरैश, कि ऐ यजीदियो, ऐ शामियो, तुम वही गलती कर रहे हो जो कुरैश ने की थी। एक जुमले में कुफ्र और इस्लाम की तारीख है कि तुम वही गलती कर रहे हो जो कुरैश ने की थी। का क्या गलती की वो भी अली के बेटे ने बताया, क़द अरादू क़त्ल रसूलिल्लाहि व क़द अरदतुम क़त्ल इब्न बिन्त नबिय्यकुम, कुरैश ने चाहा था अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दे, तुम चाहते हो रसूल की बेटी के बेटे को कत्ल कर दे। तुम वही गलती कर रहे हो जो कुरैश ने की थी। वो अल्लाह के रसूल को कत्ल करना चाहते थे, तुम रसूल के बेटे को कत्ल करना चाहते थे। का सुनो यजीदियो, वला युमकिनु लहुम क़त्ल रसूलिल्लाहि मा दामा अमीरुल मोमिनीन हय्यन वला युमकिनु लकुम क़त्ल अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन मा दुमतु हय्यन सलीला। का कुरैश में जुर्रत नहीं थी अल्लाह के रसूल को कत्ल करे जब तक मेरा बाबा अली जिंदा था। तो किसमें हिम्मत है वो नजर उठाकर भी हुसैन की जानिब देखे जब तक अब्बास जिंदा है। मौला आपको सलामत, मौला ये हाथ खाली वापस ना लौटा। ये हाथ ही दुश्मन की तबाही तो नहीं है मौला पास का आलम, ये हाथ ही दुश्मन की तबाही तो नहीं है, अफगान पे हाथ की शाही तो नहीं है। शबीर के रोज़े पे भी अब्बास का परचम, अब्बास का ही जिल्ले इलाही तो नहीं है। का तुम वही गलती कर रहे हो जो कुरैश ने गलती की थी, वो अल्लाह के रसूल को कत्ल करना चाहते थे, तुम उसी रसूल के बेटे को कत्ल करना चाहते। का किसी में जुर्रत नहीं थी वो रसूल को कत्ल करे जब तक अब्बास का बाबा अली जिंदा था। तो किस में हिम्मत है वो हुसैन की तरफ नजरें उठा के देखे जब तक अली का अब्बास जिंदा है। इसलिए 6 मिसरों में शायर ने मौला अब्बास का बहुत खूबसूरत तारुफ करवाया है। वो कहते हैं कि कौन है मौला अब्बास, कहते हैं कि शबीर के खुतबों का असर होते हैं अब्बास, ज़हरा की दुआओं का असर होते हैं अब्बास, शबीर के खुतबों का असर होते हैं अब्बास, ज़हरा की दुआओं का असर होते हैं अब्बास। अब जो यहाँ पे सादात है उनकी खुसूसी तवज्जुहात का तालिब हूँ, वो कहते हैं कि बिखरे हुए सादात का घर होते हैं अब्बास। कौन है मौला अब्बास? कि ज़हरा की दुआओं का असर होते हैं अब्बास, शबीर के खुतबों का असर होते हैं अब्बास, बिखरे हुए सादात का घर होते हैं अब्बास। किबला ना इम्तिहान लूँगा ना इम्तिहान दूँगा, जिसे अभी तक समझ नहीं आई वो ये मुसरा समझे। कहते हैं बिखरे हुए सादात का घर होते हैं अब्बास, का हैदर सा नहीं कोई मगर होते हैं अब्बास। मौला आपको सलामत रखे, आपकी अकीदत के आंसू मौला कबूल करें। कम हैदर सा नहीं कोई मगर होते हैं अब्बास। अब मेरे जितने यहाँ शिया सुन्नी भाई हैं वो सुनिए कि हैदर सा नहीं कोई मगर होते हैं अब्बास। मुश्किल में कोई पूछे किधर होते हैं अब्बास। ये बाबुल हवाइज है ना, हम कहते हैं ना जाओ मौला अब्बास के दरवाजे से जाके मांगो, इनके सदके में तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। मुश्किल में कोई पूछे किधर होते हैं अब्बास, ये बाबुल हवाइज है। मुश्किल में कोई पूछे किधर होते हैं अब्बास, लहरा के अलम बोले इधर होते हैं अब्बास, लहरा के अलम बोले इधर होते हैं अब्बास। और किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि जब तक अब्बास जिंदा था कोई हुसैन की तरफ नजर उठा के देखे।
अतदरु मौला अब्बास की शहादत पर मौला हुसैन ने एक मरसिया कहा था। उसके जो पहले 2 बंद का तर्जुमा है उसमें मौला हुसैन ने यही कहा था, अब्बास तेरे होते हुए जो यजीदियों की आँख कभी सो नहीं सकती थी, अब वो तेरे जाने के बाद बड़ी चैन से सोया करेंगी। और कहा, अब्बास तेरे होते हुए ज़हरा की बेटियाँ जो बड़े चैन से सोती थी, आज के बाद ज़ैनब चैन से कभी नहीं सोएगी। अजरुकुम अला ज़हरा, अज़ादारों अपना दामन फैला लो दुआ के लिए, बाबुल हवाइज के सदक़े में मालिक आपकी दुआएं मुस्तजाब करें। अज़ादारों सैयदों को बड़ा नाज था अपने अब्बास पर। सादात का सबसे बड़ा सहारा अब्बास होते थे। करबला में देख लीजिए, जब तक अब्बास जिंदा थे बच्चे पानी मांगते रहे। अज़ादारों जब अब्बास जीन से ज़मीन पे आ गए बच्चे प्यासे थे लेकिन पानी का सवाल नहीं किया। और बीबियों का कितना बड़ा सहारा है अब्बास। रिवायत शब आशूर, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला अब्बास के खैमे में गई। क्या देखा, अब्बास तलवार तेज़ कर रहे हैं कि जैसे ही मेरी आकाज़ादी आई मौला अब्बास एहतराम में खड़े हो गए। कि अब्बास तुम मेरा छोटा भाई है, खड़ा ना भी हो तो कोई बात नहीं। कि आकाज़ादी आप मेरे खैमे में क्यों आई हैं? अब्बास को हुक्म दिया होता अब्बास आ जाता। कि नहीं अब्बास, आज ज़ैनब तो इससे कुछ मांगने आई है। जिनकी बहनें हैं वही जुमला महसूस करेंगे कि अब्बास आज ज़ैनब तो इससे कुछ मांगने आई है। कि आकाज़ादी सोच के मांगना, अब्बास करबला में खड़ा है। अजरुकुम अला ज़हरा, मौला आपको सिवाय इस गम में किसी गम में न रुलाए। कि आकाज़ादी सोच के मांगना, अब्बास करबला में खड़ा है। कहा अब्बास और कुछ नहीं मांगने आई, सिर्फ इतना मांगने आई हूँ, सारी बीबियाँ मेरे खैमे में जमा हुई हैं। और कह रही थी ज़हरा की बेटी और तो कोई डर नहीं, बस अपने पर्दों का ख्याल आता। और तो कोई डर नहीं, बस अपने पर्दों का ख्याल आता है। और कहा कि आकाज़ादी हमारे पर्दे तो सलामत रहेंगे। कि अब्बास मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं वही जवाब दूंगी जो मेरा अब्बास कहेगा। कि अब्बास बताओ उन्हें क्या जवाब देना है? कि आकाज़ादी जाके कह दो जब तक अब्बास जिंदा है हर बीबी का पर्दा सलामत है। अजरुकुम अला ज़हरा, का जब तक अब्बास जिंदा है हर बीबी का पर्दा सलामत है। का जब अब्बास न रहा तो फिर अब्बास पर्दों का ज़ामिन नहीं है। और हुसैन का कितना बड़ा सहारा था अब्बास। अज़ादारों जब तक मौला अब्बास जीन पर थे मौला हुसैन की कमर सीधी थी। जैसे ही जीन से ज़मीन पे आए ज़हरा के लाल ने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के कहा, आलान इनकसर ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अजरुकुम अला ज़हरा, हमारे मज़हब का बहुत बड़ा नाम है आगा खोई रहमतुल्लाह अलैह। वो जब मौला अब्बास की कब्र पे जाते थे ना करबला में, वो 2 जुमले ज़रूर सलाम में कहते थे। एक जुमला अस्सलामु अलैका या शबाबल हुसैन, ए हुसैन की जवानी तुझ पे मेरा सलाम हो। अल्लाह जाने किससे जुमला समझ आया है। दूसरा जुमला कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब के पर्दे तुझ पे मेरा सलाम हो। मौला आपकी आहों पे रहम करे। अज़ादारों जब भी कोई शहीद का लाशा आता था मौला अब्बास कहते थे मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन कहते थे अब्बास तू मेरे लश्कर का अलमदार है। जब जनाब कासिम का लाशा आ गया और मोहम्मद का लाशा आ गया, कहा मौला मेरे हाथों के पाले हुए बच्चे मैं उनके लाशे उठा रहा हूँ। कहा मौला मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। अब जो कहा ना अब्बास तू मेरे लश्कर का अलमदार है, कहा मौला कहाँ है वो लश्कर जिसका अब्बास अलमदार है। मेरे तो प्यासे सिपाही फुरात के किनारे मेरा इंतजार कर रहे। अजरुकुम अला ज़हरा, इतने में मौला अब्बास अपने खैमे में गए कि इनकी ज़ौजा जनाब लुबाबा कहती हैं कि सरताज मुझे बताओ तो सही जरा नजफ को रास्ता कौन सा जाता है। कि सरताज बताओ तो सही नजफ को रास्ता कौन सा जाता है। कि लुबाबा क्या तो अली की बेटियों के साथ कूफा और शाम नहीं जा सकती? कि नहीं मैं जा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए नजफ का रास्ता पूछ रही हूँ कि अली को जाके बताना चाहती हूँ जरा आके करबला में देख तेरी बेटियां कितनी गरीब हो गई। जरा करबला में आके देख
तेरी बेटियां कितनी गरीब हो गई। कहा क्या हुआ है? कहा सुबह से हुसैन की बेटी सकीना हर खैमे में एक दफा गई है, मेरे खैमे में 9 दफा आई है और यही कहती है चचा अब्बास कहो एक घूंट पानी ला दे वरना असगर प्यासा मर जाएगा। अजरुकुम अला ज़हरा। अभी बातें हो रही थी, हुसैन की सकीना आ गई। अज़ादारो जैसे ही सकीना आई, कहा चचा मेरे असगर के लिए एक घूंट पानी ला दो। कहा बेटा अपने बाबा से इजाज़त ला दो कि मैं खुद आपके लिए पानी लेके आता हूँ। कहा बाब चचा मैं अपने हाथों से मश्क पहनाती हूँ, मुझे यकीन है जो मैंने अपने हाथों से मश्क पहनाई मेरा बाबा नहीं उतारेगा। अज़ादारो अब उलमा कहते हैं मौला अब्बास मश्क पहनवाने के लिए झुके, झुकते झुकते इतना झुक कि 4 साल की सैयदादी के कदमों तक हाथ आ गए। अज़ादारो इतना झुके 4 साल की हुसैन की बेटी के कदमों पे हाथ आ गए। मेरा दिल कहता है ज़हरा ने कहा होगा अब्बास तूने वफा की इंतहा कर दी, मेरी 4 साल की बेटी के भी कदमों पे हाथ रख दिया। ज़हरा वादा करती है ये हाथ कयामत तक बुलंद रहेगा। अजरुकुम अला ज़हरा। मसाइब में आवाज़ बंद न कीजिएगा, ये गरीबों को पुरसा देने का जिक्र है। कहा ज़हरा वादा करती है ये हाथ कयामत तक बुलंद रहेगी। आपको कहा आवाज़ बंद न कीजिए, खोल दें। कहा ज़हरा वादा करती है ये हाथ कयामत तक सर बुलंद रहेगा। अज़ादारो मौला अब्बास मश्क पहना कि मौला हुसैन की जानिब चले। मैं मसाइब में कंजूसी नहीं कर रहा था कि हर आँख की इबादत हो जाए। अज़ादारो जब मौला हुसैन ने आते देखा समझ गए कि सकीना सफारिश के लिए आ रही है। कहा सकीना क्यों लाई हो चचा अब्बास को? कहा बाबा मेरा असगर प्यासा है, एक घूंट पानी मिल जाए वरना प्यासा मर जाएगा। कहा अच्छा सकीना असगर तेरा भाई है, अब्बास मेरा भाई है। मौला हुसैन ने कहा होगा तेरा 6 माह का है, मेरा 32 साल का है। कहा ऐसा ना हो सकीना तेरा असगर भी ना रहे मेरा अब्बास भी ना रहे। सकीना अब चचा अब्बास को भेज रही है शाम गरीबा, यही अब्बास याद आएगा जब कानों से गोशवारे छीने जाएंगे, जब तुझे तमाशे लग रहे होंगे, जब सर से रिदाएं उतर रही होगी। अजरुकुम अला ज़हरा। अच्छा अब्बास जाओ खुदा हाफिज पानी लेके आओ। अज़ादारो मौला अब्बास गए, अभी चंद कदम चलेगा अब्बास कहाँ जाते हो? कहा मौला आपने ही तो खाए पानी लेके आओ। कहा अब्बास ऐसे नहीं, जाके उस ज़ैनब से इजाज़त लो जो तेरे सहारे करबला आ गई। ज़हरा का तो तेरे सहारे करबला तक आ गई, उस ज़ैनब से इजाज़त लो। अज़ादारो सोचो तो सही, 55 साल की बूढ़ी बहन थी, 32 साल का खड़ियल जवान भाई था, और बहन वो थी जिसने माँ बन के इसे पाला था। मेरा मौला अब्बास बावफा सर झुका के खड़ा हो गया। कहा अब्बास अब क्या मांगने आया है? कहा आका जादी मुझे इजाज़त दो, हुसैन के बच्चों के लिए पानी ले आओ। कहा अच्छा अब्बास तू भी मक्तल को जाना चाहता है? कहा अच्छा अब्बास जहाँ नाना के दीन पे ज़ैनब ने इतना कुछ कुर्बान कर दिया वहाँ तुझे भी कुर्बान कर देगी। अब्बास दो बातें सुनो। एक दफा कूफा शहर था, मैं घर में शहजादी बन के बैठी हुई थी कि अचानक बाबा मस्जिद से घर आया। बाबा मुझे देख के रोने लगा। मैंने कहा अली बेटी को देख के क्यों रो रहा है? बाबा बेटी को देख के क्यों रोता है? कहा ज़ैनब मुझे कोई वक्त याद आ गया। कहा मैंने देखा अली बाबा मुसलसल रोता जा रहा है। तो मैं आगे बढ़ी, बाबा के कदमों पे हाथ लगा के कहा बाबा बेटी को भी तो बताओ अली जैसा बाबा क्यों रो रहा है? कहा ज़ैनब कोई वक्त याद आ गया है। कहा बाबा कौन सा वक्त याद आया है? कहा ज़ैनब जहाँ आज शहजादी बन के बैठी है एक दिन कैदी करके लाई जाएगी। ज़ैनब आज जिन बाजुओं पे चादर है एक दिन इन बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी। कहा ज़ैनब वादा करो उस वक्त बद्दुआ न करेगी। कहा अब्बास मैंने बाबा से वादा कर लिया, लेकिन मैं सोचा करती थी जिस बहन का एक भाई हो कोई नजरें उठा के नहीं देखता। ज़ैनब के तो 18 भाई है, मेरा तो अब्बास जैसा भाई है। किसमें हिम्मत होगी वो ज़ैनब की रिदा उतारे? किसकी जुर्रत होगी वो ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांधे? कहा अब्बास खुदा हाफिज। ज़ैनब को यकीन हो गया चादर उतरने वाली है, रस्सियां
अज़ादारो अलम चलता हुआ आया। अचानक सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा बाबा अलम दाएं जानिब झुक रहा है। मौला ने हाथ उठाए, ऐ बारे इलाहा मेरे अब्बास के दाएं बाजू की खैर हो। का बाबा अलम सीधा हो गया है, अब अलम खैमों की जानिब आ रहा है। थोड़ी देर के बाद कहा बाबा अब अलम बाएं जानिब झुक रहा है। मौला ने फिर हाथ उठाए, ऐ बारे इलाहा मेरे अब्बास के बाएं बाजू की खैर हो। अज़ादारों का बाबा अलम सीधा हो गया। अब मौला जल्दी से पानी खैमों में पहुंचाना चाहते हैं। उमर इब्न साद ने कहा आईना आईना हुरमला, हुरमला कहाँ है? हुरमला आगे बढ़ा, का हुरमला तूने अब्बास का निशाना नहीं लेना, अब मशके अब्बास का निशाना लेना है। अब्बास खैमों में पानी न ले जाए। अज़ादारों उस मलाउन ने एक तीर मशके अब्बास की जानिब फेंका। अज़ादारों ये पानी नहीं बहा, अब्बास की हसरतें बह गई। मौला अब्बास ने घोड़ा वापस मोड़ा, कहा अब खैमों में नहीं जाऊंगा, मैं तो पानी पहुंचाना चाहता था। अज़ादारों खैमे की जानिब नहीं मुड़े, अब वापस फुरात की जानिब घोड़ा मोड़ा। एक मलाउन ने मौला के सर पे गोश मारा। अब्बास ईंट से जमीन पे आने लगे, कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ ज़हरा के लाल मेरा सलाम कबूल कर लो। हुसैन के हाथ कमर पे आए, कहा लाल इनका सारा जारी अब्बास तूने कमर तोड़ दी है। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो आखिरी रिवायत सुनिए। इराक के आलिम है आयतुल्लाह कासिम कज़वीनी, वो अपनी किताब मक़तलुल हुसैन में ये रिवायत लिखते हैं कि मौला अब्बास एक खतीब के ख्वाब में आए। का उस इराकी खतीब से कहा तुम मसाइब में मेरी सबसे बड़ी मुसीबत अज़ादारों को नहीं बताता। खतीब कहता है मौला मैं ये बताता हूँ, आपके दोनों बाजू कलम हो गए थे। का इससे बड़ी भी मेरी एक मुसीबत है। का मौला मैं ये भी बताता हूँ मेरे मौला की आंखों में तीर लगा था। का इससे बड़ी भी मुसीबत है। का मौला मैं ये भी बताता हूँ मेरे मौला की हसरत थी कि पानी हुसैन के बच्चों तक पहुँच जाए, मगर पानी नहीं पहुँचा। का इससे बड़ी भी अब्बास की मुसीबत है। का मौला